Hello everyone, welcome back to my channel Healing with Hina. This is Dr. Hina, and in today's episode of Study of Allen's Keynote, we are going to discuss another important remedy, that is Halonius dioica. Halonius dioica is not a very commonly used remedy. I have not used it personally in any of cases, but it is extremely useful. Halonius dioica from Allen's Keynote. Let's start. So it is a unicorn plant and belongs to family Melanthaceae. It was proved by Dr. C.B. Parr, and tincture of the root is used to prepare this medicine. This plant is also known as blazing star. So the common name can be unicorn plant as well as blazing star. So the very first line here we can see is for women with prolapses from atony, innervated by indolence and luxury, worn out with hard work, mental or physical, overtaxed muscle, burn and ache, so tired cannot sleep. Okay, so here you can see the very first word, the two words are for women. So it means that Halonius dioica is the medicine which is useful for the complaints of women, most commonly used for complaints, female complaints, especially for prolapse. Okay, whenever there is uterine prolapse, and that is also the reason is atony of muscles. Okay, so because of atony, whenever there is prolapse, you can think of this medicine. Innervated by indolence. Innervated means what? Innervated means weak और वेयर डाउन यानी थकावट. बहुत ज़्यादा ऐसे वुमेंस जो बहुत थके हुए होते हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं. एंड वाई? बिकॉज ऑफ इंडोलेंस, इधर बिकॉज ऑफ इंडोलेंस और एंड लग्जरी. अब यहाँ पर क्या है ना, दो टाइप के एक्सट्रीम्स उन्होंने बताए हैं. इधर यू कैन यूज़ इन द वुमेन हु आर एक्सट्रीमली रिच. ओके, बहुत ज़्यादा लग्जरी है, कुछ काम नहीं करना है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंडोलेंस एंड बिकॉज ऑफ दैट लग्जरी दे हैव बिकम वीक, एंड बिकॉज ऑफ दैट वीकनेस जो मसल्स है वो भी वीक हो गई है, अटोनी हुआ है, नटोनी की वजह से नाउ देयर इज प्रोलैप्स. ओके, number one, this extreme. Now the other extreme is the women who are overworked. Okay, बहुत ज़्यादा जो मेहनत करते हैं. Okay, जहाँ पर फिजिकल और मेंटल दोनों भी हो सकती है मेहनत. So here they are worn out with hard work, mental और physical. Okay, overtaxed muscle, burn and ache. Okay, so tired cannot sleep. इतने ज़्यादा थक जाते हैं वो काम करके कि they cannot sleep also. So here you can think of both extreme, both class of women, and in such women, whenever there is prolapse of uterus, this medicine will be useful. Okay, and overtaxed muscle, burn and ache, this line is usually asked as MCQ in AIPJT. Always better when occupied, when not thinking of ailment. जब भी वो नहीं, ये this is also another MCQ. Okay, so other medicines are calcarea phos and oxalic acid. When better when not thinking of the complaint. Okay, so whenever this woman or this patient, okay, they when they are occupied, okay, जब वो कुछ और काम कर रहे हैं, so that time they are better. Okay, that time उनकी complaints जो है वो ठीक है, they are whenever they are not thinking about the complaint, about their ailment. Restless, must be continually moving about. So this is another restless remedy, must be continually moving about. Why continually moving about? Because अगर वो बैठ जाएंगे, आराम करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जो कंप्लेंट्स है वो एग्रावेट हो जाएगी. सो दे मस्ट कीप देम सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओके, और इसीलिए वो रेस्टलेस होते हैं, कभी ये करना है कभी वो करना है, दे कीप ऑन डूइंग सम थिंग्स. ओके, देन इरिटेबल, fault finding, cannot endure least contradiction और receive least suggestion. उनको आप कुछ बता नहीं सकते हो, कुछ बोल नहीं सकते हो. थोड़ा सा भी आपने ये बताया कि नहीं ये गलत है या ऐसे नहीं ऐसे करना है, they will not at all take it. Okay, least contradiction जो है वो उनको irritate कर देता है. Okay, so yeah, another medicine for this is anacardium. least contradiction जो है aggravate करता है. profound melancholy, डीप एंड मेंटल डिप्रेशन. क्या है? मेंटल डिप्रेशन एंड देर इज प्रोफाउंड मेलनकोली. डायबिटीज, फर्स्ट स्टेज, यूरिन विल बी प्रोफ्यूज, क्लियर, सैक्रीन, lips will be dry, stick together,
great thirst, restlessness, emaciation, irritable and melancholy. Okay, तो दिस मेडिसिन वी कैन थिंक ऑफ इन डायबिटीज़. अब डायबिटीज़ के ही सारे जो सिम्टम्स है वो यहाँ आगे मेंशन है. फर्स्ट स्टेज में आप इसको यूज़ कर सकते हो. क्या क्या होगा? प्रोफ्यूज यूरिन है ना. सो पॉलीडिप्सिया. ओके, ऑल दिस विल बी देयर. सो देयर विल बी प्रोफ्यूज यूरिन. यूरिन कैसा रहेगा? क्लियर रहेगा, सैकरिन रहेगा. डेफिनेटली शुगर विल बी प्रेजेंट ना, डायबिटीज़ जो बोल रहे हैं. लिप्स विल बी ड्राई. ओके, लिप्स विल स्टिक टुगेदर. ओके, थर्स्ट बहुत ज़्यादा रहेगी. फिर उसके बाद रेस्टलेसनेस तो है ये पेशेंट में, इमैसिएशन हो जाएगा, इरिटेबल है और मेलनकोली है. सो ऑल दिस टुगेदर इफ़ वी सी ए पिक्चर, स्पेशली इन फीमेल. और ऐसे फीमेल में जो दो एक्सट्रीम में दिख रहे हैं, ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा लग्जूरियस है, इंडोलेंट है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, ओवर टेक्स्ट मसल है, और डायबिटीज़ हो गया है. और डायबिटीज़ का सारा पिक्चर लेकर अगर पेशेंट आता है, यू कैन थिंक ऑफ दिस मेडिसिन. ओके, सो द पेशेंट शुड बी रेस्टलेस एंड देयर शुड बी melancholy as well. Okay, then another important is albuminuria. So whenever the kidney is involved, this medicine acts really well. Okay, so kidney के लिए बहुत अच्छी medicine है. albuminuria होगा, acute और chronic दोनों में यूज़ किया जा सकता है. स्पेशली when during pregnancy, अगर during pregnancy albuminuria है, ठीक है, so नेफ्राइटिस अगर है सपोज, सो वहाँ पर यू कैन थिंक ऑफ दिस हेलोनियस. And whenever there is albuminuria with great weakness, okay, languor is also weakness or thakan, tiredness. Okay, drowsiness, unusually tired. The word is unusually tired, मतलब जितनी थकान नहीं भी होनी चाहिए, जैसे थोड़ा सा कुछ किया और बहुत ज़्यादा थक गए. ओके, मतलब थक सकते हैं बट जितना चाहिए थकना, द इंटेंसिटी इज मोर, द डिग्री इज मोर. ओके, कंपैरेटिवली. सो अनयूजुअली टायर्ड येट नोज नो रीज़न. अब ऐसा भी होता है पेशेंट कई बार कुछ काम ही नहीं किया है, ठीक है, आज सारा दिन मैं आराम कर रही हूँ और फिर भी मैं थक गई हूँ. ओके, मैनी पेशेंट से दिस. ओके, कि कुछ काम ही नहीं होता है डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी इतनी थकान रहती है, पता नहीं ऐसा लगता है पहाड़ चढ़ के आई हूँ. सो this they don't know the reason, but they will feel tired. Why? Because many things are going on inside the body. So yeah, that is another. Then menses. When talking about menses will be too early, it will be too profuse from uterine atony. In women, enfeebled मतलब weak. In women who are enfeebled by loss of blood. अभी यहाँ देखो कितने अच्छे से बोला है कि menses कैसे हो रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी आ जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ठीक है. और क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ अटोनी ऑफ यूटरस. अब जो है वो फीमेल वो वीक हो गई है. वीक क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ब्लड. when patient lose more blood than is made in intermenstrual period, मतलब दो मेंसेस के बीच में जो गैप होना चाहिए, जितने डेज होते हैं जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होगा. ओके, क्या होता है, जितना ब्लड फॉर्म नहीं होगा उससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है इसका, और इतना ज़्यादा ब्लड लॉस होने के बाद क्या होगा? डेफिनेटली देयर विल बी वीकनेस. सो ब्रेस्ट विल बी swollen, nipples will be painful and tender. Another medicines are conium, lacan. Flow will be passive, it will be dark, clotted and offensive. Okay, so कैसा होता है flow will be passive होता है, dark होता है, clotted रहेगा और offensive होता है. Okay, sensation of soreness and heaviness in pelvis. Okay, lappa is another medicine. A consciousness of womb, feels it move when she moves. इट इज़ सो सोर एंड टेंडर. ओके, कितना इतना ज़्यादा सोरनेस है, ठीक है, पूरा वोम उसका है जो इतना ज़्यादा सोर है, और इतना ऐसे सेंसेशन होता है, उसको लगता है जैसे वो चल रही है, जैसे वो मूवमेंट कर रही है ना, उसका वोम भी अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा सोर और टेंडर है, ठीक है. अनदर मेडिसिन इज लाइसिन for the bad effect of abortion and miscarriages. This is the main important use of helonias. ऐसी फीमेल जब भी आपके पास आ रही है, whenever she has this complaint कि यूटेराइन प्रोलैप्स हो गया है. अब लेकिन आप हिस्ट्री अगर देखेंगे, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आप जाते हैं, यू विल सी दैट देर आर मैनी एबॉर्शंस, मिसकैरेजेस हुए हैं बहुत बार अबॉर्शन करवाया है, ठीक है, बहुत सारी डिलीवरीज हुई है. फिर ऑल दिस सिचुएशंस, और ऐसा सब करने के बाद क्या होगा? डेफिनेटली द फीमेल विल बिकम वीक. ओके, मेंटली वीक होगी, फिजिकली होगी, ठीक है. और साथ ही साथ अगर उसकी मेंसेस जब भी आ रहे हैं, इतना प्रोफ्यूज फ्लो हो रहा है, शी इज़ एनेमिक. ओके, आपको वो एनेमिक दिखेगी, आपको रेस्टलेस दिखेगी, शी विल बी मेलनकोलिक. फेस पे आपको दिख जाएगा कितनी ज़्यादा दुखी, कितनी ज़्यादा परेशान है.
और जब ऐसी फीमेल आपके पास आएगी विद कंप्लेन ऑफ प्रोलैप्स इधर विद डायबिटीज़, ओके, या से नेफ्राइटिक सिंड्रोम, ऐसा सब कुछ अगर लेके कोई भी फीमेल ये पिक्चर लेकर आ रही है, नेवर एवर फॉरगेट हेलोनियस, ओके, सो हेलोनियस विल क्योर हर। सो जब भी बहुत ज़्यादा ओसीपी की भी हिस्ट्री अगर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ओसीपी भी ली हुई है, बहुत बार अबॉर्शन भी कराया हुआ है, सो हेलोनियस विल वर्क इन ऑल सच फीमेल्स. Now here you can compare it with Aliteres, okay, Aliteres ferinosa, okay, lilium phosphoric acid. It is similar to Aliteres in debility from prolapse, okay, protracted illness and defective nutrition. Defective nutrition भी है और साथ ही साथ blood loss भी है, ठीक है. तो Aliteres में there will be defective nutrition और उसकी वजह से patient will be weak and emaciated and all, and Helonius में क्या होता है, blood loss की वजह से she will become weak. Now when we see NASH, only important symptom NASH is given is nephritis during pregnancy, okay. In Boric we will see that tired, back achy females, क्या word use किया है उन्होंने, बोला है tired back achy females, मतलब ऐसी females जो बहुत ज़्यादा थकान जिनमें है और साथ ही साथ back achy यानी कि जिनके हमेशा पीठ में कमर में दर्द रहता है, ऐसी सारी वुमेन्स जो है हेलोनियस में आती है. मेंसेस आर ऑफ्टन सप्रेस्ड एंड किडनी कंजेस्टेड, मतलब मेंसेस जो है वो फ्लो होना रुक सकता है और किडनीज कंजेस्टेड है. कॉन्स्टेंट टैकिंग एंड टेंडरनेस ओवर किडनी, सो दिस इज ब्यूटीफुल, इट हैज़ अ ब्यूटीफुल एक्शन ऑन किडनी, ओके. तो किडनी पे एक्ट करती है और यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था कि मेंसेस सप्रेस्ड है, जहाँ से फ्लो होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा है, और जहाँ ऐसा लगता है कि जो ब्लड, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आई एम टेलिंग यू, I think it was, yeah, so it is said that कि जो ऐसा फील होता है, जो ब्लड जो है ड्यूरिंग मेंसेस दैट शुड गो आउट, ऑल दैट ब्लड हैज़ बीन अराउंड किडनी, ओके. तो ऐसा किडनीज आर कंजेस्टेड एंड मेंसेस आर सप्रेस्ड, ओके. सो दैट इज द कंडीशन ब्यूटिफुली डिस्क्राइब्ड इन बोरिक अबाउट हेलोनियस. Constant aching and tenderness over kidney can trace outline of kidney by constant burning. इतनी ज़्यादा बर्निंग होती है कि आपको पेशेंट बता सकता है ऐसे, ठीक है, कि यहाँ इस जगह पे बर्निंग हो रही है, ओके. पेशेंट को नहीं पता होगा ये किडनी है या वॉट एवर, बट वहाँ बर्निंग होगी एंड पेशेंट कैन ट्रेस द आउटलाइन ऑफ द किडनीज. देन ग्रेट लैंग्वर एंड बेटर बाय एक्सरसाइजिंग. अब इतनी ज़्यादा थकान है पेशेंट को, पेशेंट इतना ज़्यादा टायर्ड है, लेकिन एक्सरसाइज करने से पेशेंट को बेटर फील होता है, ओके. बैक एक अगर मिसकैरेज के बाद स्टार्ट होता है, व्हेन एवर अ फीमेल कंप्लेन्स ऑफ बैक एक अगर यहाँ पर दिया मिसकैरेज के बाद जब भी बैक एक होगा, सो यू कैन थिंक ऑफ हेलोनियस, ओके. जैसे हम हाइपेरिकम यूजुअली प्रिस्क्राइब करते हैं व्हेन एवर देयर इज बैक एक आफ्टर सी सेक्शन, ओके. डिलीवरी हुई है लेकिन सीजर से अगर हुई है तो बिकॉज ऑफ दिस एनेस्थेशिया एंड, है ना, तो वहाँ पर अगर बैक एक फीमेल को होता है तो हाइपेरिकम. अगर मिसकैरेज सिर्फ हुआ है और उसके बाद पेशेंट की बैक में पेन हो रहा है तो हेलोनियस. देन फाटक बोलते हैं कि सलाइवेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमन एंड टीथिंग चिल्ड्रन. तो सलाइवेशन, अगर वुमन प्रेग्नेंट है और बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है तो हेलोनियस. अगर छोटा बच्चा है, बेबी है और उसको न्यू टीथ इरप्ट हो रहा है उसके और उसको बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो रहा है, और देन ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ हेलोनियस. एप्थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बीटर टेस्ट इन अर्ली, ओके, मॉर्निंग. अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है, अगर बीटर टेस्ट आ रहा है मुंह में और साथ ही क्या हो रहा है, मुंह में अल्सर्स हो रहे हैं, एप्थिस हो रहे हैं अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, सो यू कैन थिंक ऑफ हेलोनियस. सो हेलोनियस इज़ वन ऑफ द, जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था एलेंस की नोट में लिखा है फॉर वुमेन, तो वुमेन रिलेटेड कंप्लेंट. सो मेन फेज जो होता है, इंपॉर्टेंट फेज या इंपॉर्टेंट चेंज जो होता है एक फीमेल की लाइफ में, दैट इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. एंड सेकेंड वन 3 क्या होता है, प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी एंड मेनोपॉज. दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस और फेजेस इन एनी फीमेल, ओके. तो यहाँ पर आपने देखा वी कैन यूज़ इट इन प्रेगनेंसी में अगर नेफ्राइटिस होता है, सो दिस मेडिसिन इज़ वेरी यूजफुल. प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर एप्थिस होते हैं मुंह में, ठीक है,
तो वहाँ पर यूज़फुल है। बहुत ज़्यादा सलाइवेशन होता है तो यूज़फुल है। बीटर टेस्ट अगर फीमेल को लगता है अर्ली मॉर्निंग में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस। एंड मेनोपॉज, स्पेशली मेनोपॉज या फिर प्रोलैप्स जब भी हो रहा है तो दैट टाइम ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ दिस। देन फाउल एंड लम्पी और कर्डल लिकोरिया, ओके, फील्स हॉट व्हेन टायर्ड, ओके। लिकोरिया कैसे होता है? इट इज़ कर्डल, यानी कि कर्ड की तरह एकदम वाइट रहेगा, फाउल रहेगा, बहुत ज़्यादा स्मेल रहेगी उसके अंदर, ओके। सो या दैट इज़ ऑल अबाउट हेलोनियस डायोइका, very important medicine. So definitely remember this, use in your clinics with your patients, okay, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है. So yeah, that is all about Halonius dioica. Thank you so much for watching. I'll see you in next video. Take care. Bye bye.